Okay student, this is the third and the last part of chapter number 24, solution of right triangles. So this is your 13th question. So a figure is given, so there are two right angle triangles, ABC, right angle at B, and BDC, right angle at D. First of all, we have to calculate BC. So BC is part of both the triangles. We will consider first triangle, then ABC, to calculate this BC. Then we have to calculate AD. AD is a part of this shorter triangle, and then AC. AC is also part of this bigger triangle. So first of all, we will write in triangle ABC. So this is angle of reference C. This is 90 degree. So this side will become base. The side between angle of reference and 90 degree is base. This is perpendicular. So tan 30 is equal to perpendicular upon base. So AB upon BC. AB is 12, BC is BC. Value of tan 30 is 1 by root 3. Now cross multiply, value of BC is 12 under root 3 centimeter. So 12 multiplied by 1.432 centimeters. So you can calculate this. Now this was your first part. Second part बाद में करते हैं. अब हम we have considered this triangle, so we will find AC. Again, this is perpendicular, this is hypotenuse, this is perpendicular. Sin क्या होता है आपका? Perpendicular upon hypotenuse. So third part, sin 30, perpendicular AB, hypotenuse AC. AB is 12, AC we have to calculate. Sin 30 is 1 by 2, 12 upon AC. So 1 by 2 sin 30 की वैल्यू 12 upon AC. From here AC क्या हो जाएगा? AC इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 AC is equal to 12 into 2, 24 centimeter. Now we will do the second part. In the second part, we have to calculate this side AD. This is 90 degree. Okay, in triangle ABC, if this is 30, this is 90, this must be equal to 60 degree. The sum of all angles is 180. 180 minus 90, that is 90. 90 minus 30, 60. So A is 60 degree. I know you all can calculate this angle. This is 60. Now in triangle, you can write angle C equal to 30, B equal to 90. Therefore angle A is equal to 180 minus 30 minus 90, which is equal to 60 degree. Okay, so then in triangle ADB, in triangle ADB, this is angle of reference, this is 90 degrees, so this is base, and this is perpendicular, this is hypotenuse. So 12 is now hypotenuse. So we have to calculate base. Base we have to calculate, and this is hypotenuse. So cos 60 is equal to base क्या है? AD upon hypotenuse AB. That means AD upon AB is 120. AD upon AB is equal to, AD upon 12, not 120, 12. So ये था एंगल ऑफ रेफरेंस 60 डिग्री. दिस इज बेस जो हमने कैलकुलेट करना था. कोस थीटा क्या होता है? बेस AD अपॉन हाइपोटेन्यूज AB. सो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज. ठीक है, यहाँ पे कॉस
60 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू AD अपॉन 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD क्या आ जाएगा 12/2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2, सो दिस इज 6, इन कटिंग वी गेट 6, सो AD की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। ओके, नोट इट डाउन। So 14th question, in right angle triangle B angle 90 degree, find the magnitude of angle A if AB is 3 times of BC and B, second part is BC is 3 times of AB. First of all, make a right angle triangle. So angle B is 90 degree, this can be A, this will be C. Okay, first part, AB is under 3 times of BC. AB is equal to under 3 BC. So AB equal to under 3 BC आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा AB अपॉन BC इज इक्वल टू अंडर रूट 3। हमें एंगल A फाइंड आउट करना है। नाउ AB, इस ट्रायंगल में देखो AB एंड BC, तो एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये साइड क्या होगी बेस, दैट मीन्स AB हो गया बेस, ये BC क्या हो गया परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना आ गया अंडर 3। नाउ रिमेंबर करो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर आप याद करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोट। ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका कोट A, ठीक है। कोट A कितना आ गया, कोट A इज इक्वल टू अंडर रूट 3। नाउ टेबल याद करो, कोट कौन से एंगल पे अंडर रूट 3 होता है, सो कोट 30 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3। सो अंडर रूट 3 की जगह हमने रिप्लेस कर दिया कोट 30। नाउ क्लियरली A की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, विच इज योर आंसर। ओके, सेम इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट, वो कह रहा है BC इज 3 अंडर रूट टाइम्स AB, BC इज इक्वल टू अंडर रूट 3 AB, BC इक्वल टू अंडर रूट 3 AB। सो BC आ गया आपका BC अपॉन AB कितना आ गया अंडर रूट 3। अगेन एंगल A फाइंड आउट करना है, सो AB क्या है आपका बेस, BC क्या आपका परपेंडिकुलर, सो ये बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सॉरी, ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC आपका परपेंडिकुलर था, AB आपका बेस। ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो क्या होता है tan थीटा, दैट इज tan A। tan, अब टेबल से दोबारा देख सकते हो, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। फ्रॉम हेयर A इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज योर आंसर। Question number 15. So, the ladder is placed against a vertical tower. If the ladder makes an angle of 30 degree with the ground and reaches up to height of 15 meter of the tower, find the length of ladder. एक ladder है, ठीक है, एक vertical tower है, this is your tower and this is your ladder. So वो क्या कह रहे हैं, लैडर प्लेस किया है वर्टिकल टावर के अगेंस्ट एंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड।
So this is, suppose this is your ground. Okay, this angle is of 30 degree, and this is ladder reaches up to the height of 15 meter of the tower. So this height is 15 meter, and we have to calculate this length. So this is A, B, C solution. So let the ladder is AC. So AC we have to calculate, and BC is height of tower. BC is equal to 15 meter. Okay, now this is the right triangle, this is hypotenuse, this is perpendicular, this is given. So we will apply sin theta. Sin 30 is equal to क्या? This side will be base, this will be perpendicular. BC upon AC. AC ही हमने find out करना था. This is 1/2. Length of BC is 15. AC we have to calculate. So AC is equal to 15 into 2, 30 meter. So units are meter. Okay, just you have to understand the question. Ladder is placed against a vertical tower. एक vertical tower है, उसके against ladder placed है. Ladder makes an angle of 30 degree with the ground. So this is the ground. So this is the angle 30 degree. And reaches up to height of 15 meter. तो यहाँ से 15 मीटर की हाइट पे रीच कर रही है. हाइट ऑफ द टावर की 15 मीटर हाइट तक. सो दिस इज, देन वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ ऑफ लैडर, दैट इज AC. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. A kite is attached to a 100 meter long string. Find the greatest height reached by the kite when string makes an angle of 60 degree with the level ground. Suppose this is kite and this is 100 meter strong string. Now kite is attached to this string which is 100 meter long. Find the greatest height. So this height we have to calculate by the kite when its string makes an angle of 60 degrees. So this angle is of 60 degree with the ground. Again take it as A, B, C. So this we have to calculate. This is perpendicular. So sin 60 is equal to perpendicular BC upon AC. Clear? What is the value of sin 60? Under 3/2. BC we have to calculate. AC is 100. From here calculate the value of BC. That is under 3 multiplied by 100 upon 2. This is 50. 1.732 multiplied by 50. So which is 86.6 meter. Okay students, the question is quite easy. हमें काइट के स्ट्रिंग की लेंथ गिवन थी 100 मीटर, एंगल कितना था 60 डिग्री, एंड दिस हाइट वी हैव टू कैलकुलेट. सो जस्ट वी अप्लाई द साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, 17th क्वेश्चन. This is 20 degree, this is 45, this is 30 degree. We have to calculate AB and BC. So this question is having 3 part. So first of all consider this triangle. So BC and AB is in this triangle. This is theta. So this will be base and this is perpendicular. So tan 45 must be equal to perpendicular AB upon BC. Now value of tan 45 is 1. That means, or we can say AB is equal to BC.
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया. नाउ इन दिस ट्राइंगल, in this bigger triangle ABD, so you can see that this is your base and this is perpendicular. Tan 30 is equal to BD, that is base, sorry, perpendicular ऊपर आएगा, that is AB upon BD. so tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. ए बी को हम लिख सकते हैं BC, बिकॉज AB एंड BC इक्वल है. एक यहाँ पे लिख देना फॉर्म इक्वेशन 1. उसके बाद BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC + 20. ये BD था, BC + 20. क्लियर. ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये साइड आ जाएगा BC + 20, इधर आ जाएगा √ this is cross multiply √3 BC. so BC minus √3 BC is equal to -20. तो इसे इन दोनों में से BC कॉमन आ जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद 1 - √3 इक्वल टू -20. BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 upon 1 - √3. ये माइनस को चेंज करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1. हमने माइनस से दोनों ऊपर साइड में भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गई, 1 नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव टर्म थी, ये पॉजिटिव हो गई. अब क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर है तो हम इसे रैशनलाइजेशन कर देंगे, इसकी +1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड कर दिया. सो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, a² - b², दैट इज 3 - 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1. ऊपर क्या आ गया, 1.732 + 1, ये आ गया 20. 3 - 1 कितना होता है, 2, मल्टीप्लाई बाय 2.732. सो 1 ऐड करके 1 + 1 2. यहाँ पे हमने a² - b² का फॉर्मूला लगाया है. √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर 1. तो कटिंग कर दी, सो योर आंसर इज 27.32. दिस इज द वैल्यू ऑफ BC एंड AB इज आल्सो इक्वल टू, because AB is equal to BC, so both are same. So this is your first part, note it down. सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल कंसिडर की, तो वहाँ पे AB = BC आ गया. देन ये बड़ी वाली ट्रायंगल में tan 30 वाला फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD. tan 30 की वैल्यू 1/√3. AB एंड BC सेम थे, तो रिप्लेस कर दिया BC, देन BD को लिख दिया BC + 20. देन जस्ट वी हैव डन द रिमेनिंग कैलकुलेशन. नाउ लुक हियर, सेकंड पार्ट. सो हियर दिस इज 20 centimeter. Okay, first we will use this triangle ABC. so यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री, tan 60 क्या होगा आपका, AB upon BC, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये AB upon BC. फ्रॉम हेयर AB की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 BC. नाउ इस बड़ी ट्रायंगल में अगेन tan 30 का फॉर्मूला लगा दो. tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर AB, बेस कितना है, बेस BD है, सो उसे लिख सकते हैं BC + CD. CD कितना है, 20, BC + 20.
tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। BC + 20 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय AB। ठीक है, हमने यहाँ पे AB की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी √3 BC, वो वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे BC + 20 ये कितना आ गया √3 BC, BC + 20 ये BC इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 3BC - BC 2BC इक्वल टू 20। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 20/2, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, BC की वैल्यू इतनी आ गई। AB इज इक्वल टू √3 BC, तो √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, BC की वैल्यू कितनी है 10, AB की वैल्यू आ गई 17.32। स्टूडेंट्स नोट इट डाउन। पहले हमने इस ट्रायंगल में से AB एंड BC का रिलेशन फाइंड आउट किया, देन बड़ी ट्रायंगल में से AB एंड BC का अगेन रिलेशन फाइंड किया, AB की वैल्यू पुट की। नाउ सिर्फ एक ही वेरिएबल था BC, उसे हमने सॉल्व किया, देन उसकी वैल्यू अगेन AB की टर्म्स में फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट की, एंड देन वी गेट अवर सेकेंड आंसर। दिस इज योर थर्ड पार्ट। ये वैसे बिल्कुल सेम ही है एग्जैक्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर दिस ट्रायंगल। सो दिस इज tan 60 क्या होगा आपका AB/BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, सो AB की वैल्यू क्या आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 BC। देन इन द बिगर ट्रायंगल tan 45 मस्ट बी इक्वल टू AB/BD। BD को हम क्या लिख सकते हैं BC + 20। ठीक है, यहाँ पे भी BC की वैल्यू पुट कर दो, tan 45 इज़ 1, AB की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं √3 BC फ्रॉम इक्वेशन 1। BC + 20, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC + 20 इज इक्वल टू √3 BC, 20 इज इक्वल टू √3 BC - BC। सो यहाँ से टेक BC कॉमन, ये क्या गया √3 - 1। ठीक है, सो BC की वैल्यू क्या आ गई 20/√3 - 1। अभी हमने ये कैलकुलेशन की थी, हमने रैशनलाइजेशन किया था, तो सेम कैलकुलेशन यहाँ से आपकी BC की वैल्यू आ जाएगी 27.32। ठीक है, BC की वैल्यू पता चल गई, AB की वैल्यू कितनी है BC ओके। तो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास AB की, एक तो BC × √3, ये थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। दूसरी वैल्यू हमने यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर इसे AB इज इक्वल टू ये क्या होता है 1, दैट मीन्स BC + 20। तो यहाँ पे इस वैल्यू में AB इज इक्वल टू BC + 20, दैट इज़ 47.32 सेंटीमीटर। जस्ट इसे 1 पुट करो, इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो AB की वैल्यू BC + 20। दो वैल्यूज़ हैं AB की, एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है। आप आंसर चेक कर सकते हो, दोनों का सेम होगा। यहाँ से आंसर आ गया 47.32। ओके, 18th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फाइंड PQ। AB is given 150 meter, angle P is given and Q is given. So okay, this is your homework।
पहले ये ट्रायंगल लेना, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। सो tan थीटा से आप कैलकुलेट कर लोगे। जो भी वैल्यू है, लेट से दिस वैल्यू इज़ x, तो आपकी जो भी वैल्यू है आप कैलकुलेट कर लेना। देन सेकंड ट्रायंगल, अगेन इसमें दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, परपेंडिकुलर इज़ 150, बेस आपने फाइंड आउट करना है। अगेन tan से ही कर सकते हो, क्योंकि ये 45 है तो ये आपका 150 ही आ जाएगा कैलकुलेट करके। देन इन दोनों को ऐड कर देना, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी बी प्लस बी क्यू, सो यू विल गेट योर आंसर। ओके, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। अगेन दिस इज़ 150। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कैलकुलेट करना है, पी क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल में से आप क्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देन इस बड़ी ट्रायंगल में से पी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सेम tan से ही हो जाएगा ये दोनों वैल्यूज़, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले फॉर्मूले से। देन थर्ड आपने पी क्यू फाइंड आउट करना है। सो जो आपने पी बी फाइंड आउट की है माइनस क्यू बी आप कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके, दिस इज योर 19th क्वेश्चन। tan x दिया हुआ है आपको 15/12, tan y दिया हुआ है 3/5। सो दिस इज योर x, दिस इज योर y, ए बी इज गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी डी। सो एक बार वी कैन अप्लाई ऑन फर्स्ट ट्रायंगल, दिस ए बी इज गिवन 48। ओके, पहले ए सी कैलकुलेट कर सकते हैं, देन बी सी, दोनों को माइनस करेंगे, वी विल गेट अवर आंसर। दिस इज एक्स, सो इन बिगर ट्रायंगल ए सी बेस हो जाएगा, सी डी tan x विच इज़ गिवन 5/12, इसे हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस ए सी। फ्रॉम हेयर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/5 सी डी। सेम वे में tan y की वैल्यू, tan y आपका क्या दिया हुआ है, 3/4, सो tan y परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी डी अपॉन बी सी। अगेन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ए सी एंड बी सी हमें मिल गया। ए सी माइनस बी सी, आप देख सकते हो ए सी माइनस बी सी क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ए सी की वैल्यू कितनी है, 12/5 सी डी। बी सी की वैल्यू कितनी है, 3/4 सी डी इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 48, तो यहाँ पे आपने एलसीएम लेके सोल्व करना है। 48 सी डी माइनस 15 सी डी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 48 माइनस 15 कितना होता है, ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हमने की है। जब हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 4 ऊपर आएगा और 3 नीचे, सो दिस विल बिकम 4/3, नॉट 3/4। 3/4 नहीं आएगा यहाँ पे, 4/3। दिस इज आल्सो 4/3। now LCM लो, then it will be 15 36 CD minus 20 CD is equal to 48। 36 minus 20 कितना हो गया, 36 minus 16 CD, 48 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15, so CD equal to 48 multiplied by 15 upon 16। 16 3s are 48, 5 15 into 3 45, so your answer is 45 meter। ठीक है स्टूडेंट्स, 19th क्वेश्चन। सो ये x गिवन था, ये y गिवन था। फर्स्ट ऑफ ऑल tan x की वैल्यू ये गिवन थी और हमने अपने इस ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाया, सी डी ओपन ए सी आ गया। देन वहाँ से ए सी की वैल्यू कैलकुलेट की, देन tan y से अगेन tan y की वैल्यू 3/4 गिवन थी, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, ये आ गया सी डी बाई बी सी। यहाँ से हमने बी सी फाइंड आउट कर लिया।
जब ए सी एंड बी सी हमारे पास आ गया, ए सी माइनस बी सी किया, वो क्या है, ए बी के इक्वल। ए बी की वैल्यू 48 है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सी डी की टर्म्स में हमने रिप्लेस कर दी, क्योंकि हमें सी डी फाइंड आउट करना था। देन सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर एंड ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ इट इज़ 120। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल्स। सो डायगनल्स की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर दिया हुआ है एंड ऑब्ट्यूज एंगल हमें दिया हुआ है। So suppose this is your rhombus. So perimeter is given 96. रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। so पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। सो साइड कितनी आ गई, 96/4, दैट इज 24 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी। हमें डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सपोज दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल, इट इज़ गिवन 120। दिस कंप्लीट एंगल इज गिवन 120 डिग्री। सो हमने ये सारी साइंस फाइंड आउट कर ली है, ये सारी 24 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, और ये एंगल हमें ऑब्ट्यूज दिया हुआ था 120। नाउ डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एंड सपोज ये सेंटर ओ है और ये एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये कंप्लीट एंगल 120 था तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। नाउ अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ओ ए ओ बी, सो दिस इज एंगल 90 डिग्री and this side will be base cos 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, बेस OB अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, OB की वैल्यू यहाँ से, AB की वैल्यू 24 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, सो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, therefore OB is equal to, या फिर आप लिख सकते हैं BD is equal to 2 of OB। ठीक है, इसका रीज़न डायगोनल्स ऑफ rhombus bisects each other। ठीक है, सो यहाँ पे 2 इंटू OB दैट इज़ 2 इंटू 12 कितना आ गया, 24। सो एक डायगोनल हमने फाइंड आउट कर लिया 24 सेंटीमीटर। इन द सेम मैनर हम सेकंड डायगोनल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या है आपका 60, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, दैट इज़ बेस हमने फाइंड आउट कर लिया परपेंडिकुलर। तो हम साइन 60 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 60 क्या होगा आपका, OA अपॉन AB। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। OA की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू कितनी है, 24। तो इसे OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी 12 मल्टीप्लाई बाई 1.732। नाउ जो हमारा सेकंड डायगोनल है AC इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय OA। सेम वही फॉर्मूला, वही रीज़न। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.732। सो ऑन मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट योर आंसर। योर आंसर माइट बी 41.57। राउंड ऑफ करने के बाद इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, when you round off it to 2 digits। Okay, with this your chapter is completed। Do like the video, share the video and comment on the video। Thanks for watching and don't forget to
subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.